ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 7th। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 7.3 ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5th। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਖਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਟਿਸਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਿੰਨੇ A, B ਅਤੇ C। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ABC। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ABC। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, -6, ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, -2, ਇਹ C ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 2। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਕਿੱਧਰ? ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ C ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣੇਗੀ AB ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ M। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ CM ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਜੋ AB ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ M AB ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ M ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ? AB ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ M ਦੇ ਜਿਹੜੇ XY ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ A ਅਤੇ B ਦੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, -6, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, -2। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ x1, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ y1, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ x2 ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ y2। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ M ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦਾ। ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ M ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ x ਅਤੇ y = x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ਸੋ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 + 3 ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 4 + 3/2, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -6। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 2, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ -2/2। ਸੋ 7/2 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -8/2। ਸੋ 2 × 2 2 4 8, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 7/2, -4। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ M ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। A ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, B ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ A ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ BC ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਜੇਕਰ B ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ AC ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ AMC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤ੍ਰੈਭੁਜ BMC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ AMC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ M ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 7/2, -4। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈਭੁਜ AMC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/2। ਹੁਣ x1 x2 x3 ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? AMC ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਸੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ x1। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ A ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ x1 ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ 4, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ।
फिर देखो साढ़े को पॉइंट है एम, सो एम का पहला पॉइंट 7/2 इत्थे आएगा साढ़े को 7/2 ब्रैकेट, फिर साढ़े को ब्रैकेट स्टार्ट प्लस, फिर साढ़े को आएगा सी का पॉइंट, सो पहला पॉइंट की है 5, ये आ गया साढ़े को 5, फिर ब्रैकेट आ गई साढ़े को एंड स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। हुण देखो y2 y3 लिखना है, हुण असीं इसका पहला पॉइंट लिखे आ, इहदे नाल साढ़े को y1 पिया है, ये है साडा y2, साढ़े को आएगा -4 माइनस कर देंगे असीं 2, फिर साढ़े को आएगा ये 7/2 लिखा, इस तो ऊपर चल गया, सब तो पहला 2 लिखांगे फिर लिखांगे -6, सो 2 -6 करना है, साढ़े को हो गया प्लस का 6 हो गया। सो इस जोड़े x1 x2 x3 है ना साढ़े को, ये उम्मीद करदा कि जो पहले क्वेश्चन तुसीं जेकर देखे होणगे क्लासेस लगाइया होंगियां तो तुहानूं आराम नाल जिहड़े क्लीयर हो जाएंगे। असीं अगे ते अगले पॉइंट जिहड़ा मूव करी जाना है। सो ये हो गया साढ़े को, हुण जिहड़ा 5 लिया वो असीं लिया सी का पॉइंट, हुण सी के पॉइंट चों असीं 2 नहीं लवांगे, असीं अगले 2 पॉइंट से जावांगे ए ते एम ते। सो इस पहला पॉइंट y1 कितना है -6 तो y2 कितना है -4, सो पहला ही माइनस है, साढ़े को आ जाएगा +4, क्लीयर। सो इस तरह साढ़े को आ गया 1/2 4 -2 -4 -2 -6 आ गया साढ़े को प्लस 7/2 ब्रैकेट 2 + 6 8, ये आ गया साढ़े को प्लस दिता गया 5 माइनस ते प्लस साढ़े को हो गया माइनस, इसलिए -6 + 4 आ गया साढ़े को 2। सो आंसर आएगा माइनस दे विच, क्योंकि वड्डी संख्या किहड़ी है माइनस वाली, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नैगेटिव, सो आंसर साढ़े को जिहड़ा आएगा वो नैगेटिव च आएगा। ये साढ़े को आ गया 1/2 4 6 24 -24 4 6 24 प्लस 2 1 2 2 चौके 8, ये बचा साढ़े को। सो 7 नूं 4 नाल गुणा कर दो, 7 चौका 28, ये आ गया साढ़े को 28 प्लस 5 दूनी 10, ये आ गया साढ़े को माइनस का 10। सो इस तो बाद साढ़े कोल की आंदा है इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -24, देखो ये साढ़े को -24 प्लस 28 है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, 28 चो 24 माइनस कर दो, साढ़े को आ गया 4। सो लिखना है तो इस तरह भी लिख लो 28 - 24, साइन देखो वही रहा 24 फिर भी नैगेटिव का ही रहा साढ़े को, तो 28 फिर पॉजिटिव का ही रहा, फिर साढ़े को हो गया -10, सो ये ब्रैकेट ओपन होएगी, साइन चेंज हो जाएगा -10 आ गया। सो आ गया 1/2 28 चो 24 माइनस करो 4, फिर आ गया -10, सो आ गया 1/2 4 - 10 आ गया -6, सो 2 1 2 2 3 6, साढ़े को हो गया -3 वर्ग इकाइयाँ। सो ये आ गया साढ़े कोल त्रिभुज AMC का खेत्रफल। सो फिर इसनों असीं मान लेंदे हाँ इक्वेशन 2। इस तो बाद साढ़े को आंदा है त्रिभुज BMC का खेत्रफल। हुण त्रिभुज BMC का खेत्रफल, सो जो बराबर होएगा 1/2, सब तो पहला बी पॉइंट लिखा है, बी दे पॉइंट फर्स्ट पॉइंट असीं लिखांगे जो है 7/2, सॉरी बी का पहला पॉइंट कितना है 3, ये लिखा साढ़े को 3 जो x1 है साडा ब्रैकेट, फिर प्लस बी तो बाद आंदा है एम का फर्स्ट पॉइंट 7/2, सो इत्थे लिख देंगे असीं 7/2, फिर ब्रैकेट, फिर आ गया प्लस साढ़े कोल सी का फर्स्ट पॉइंट 5, ये साढ़े को आ गया 5, फिर साढ़े को आ गई ब्रैकेट एंड स्क्वेयर ब्रैकेट बंद हो जाएगी साढ़े कोल। इस तो बाद असीं 3 दे नाल की लिखना है y2 - y1। सो देखो असीं बी का पॉइंट ये लिखिया, हुण असीं एम ते सी दे दूसरे नंबर वाले पॉइंट जिहड़े ने y वाले वो असीं लिखांगे। सो एम का की है -4 ते सी का की है 2, सो साढ़े को आ गया -2, फिर साढ़े को देखो 7/2 है, तो हुण देखो 7.2 किहदा पॉइंट है साढ़े को एम का पॉइंट। सो एम तो बाद असीं किहड़े पॉइंट ते चल जाएंगे सी पॉइंट ते। सो सी का पहला पॉइंट देखो कितना है 2, सैकेंड पॉइंट कितना है 2, मतलब कि सी की कोटी कितनी है 2। इस तरह सी तो बाद असी पॉइंट किहड़े ते जावांगे, अगे का कोई पॉइंट नहीं है इसलिए पिछे आ गए बी पॉइंट ते। सो बी का साढ़े को कोटी कितनी है या ऑर्डिनेट -2, सो ये -2 है साढ़े को की हो गया +2, फिर साढ़े को आ गया सी का भुज। सो सी का एक्स पॉइंट आ गया साढ़े को 5, सो सी तो बाद असी ये पॉइंट तो नहीं लवांगे सी दे नाल दा वाई वाला, असी अगे चल गए, साढ़े को पॉइंट आएगा बी का सैकेंड -2, ये लिखते हैं, फिर बी तो बाद असीं चल गए एम ते। सो एम का साढ़े को कोटी कितनी है -4, सो साढ़े को माइनस होने करके इत्थे हो गया प्लस, तो साढ़े को की आंदा फिर 1/2 3 -4 -2 हो गया प्लस साढ़े को -6 प्लस 7/2 2 + 2 हो गया 4 प्लस 5 -2 + 4 की हो गया साढ़े को माइनस प्लस या प्लस माइनस
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ 4 ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ 2। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1/2, 3 6 18 ਮਾਈਨਸ 18 ਪਲੱਸ 2 1 2 2 2 4, 7 दूनी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 14 ਪਲੱਸ 5 दूनी 10। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1/2 ਮਾਈਨਸ 18, 14 ਤੇ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 24। ਸੋ 24 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 6। देखो माइनस प्लस माइनस होंगी है, छोटी चो वड्डी संख्या तो नहीं माइनस हो रही, पर असी वड्डी चो छोटी माइनस कर लैनी है, तो साइन किहड़ा आ जाना है, जिहड़ी संख्या वड्डी होवे वो वाला साइन आ जाएगा। साडे कोल हैगा 2 एकम 2 2 तीए 6। सो साडे कोल हैगा 3 वर्ग इकाइयां। हुण देखो साडे कोल दोवें ही त्रिभुजां दे खेत्रफल जिहड़े ने वो निकल चुके हैं, इसनूं असीं इक्वेशन मानते हैं 2। सो दोवां 'च फर्क की है, इसका आंदा है माइनस 3 वर्ग इकाइयां, इसका साडे कोल है पॉजिटिव 3 वर्ग इकाइयां। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ, ਉਹ ਵਾਲੀ कोई भी साड़ी कोई चीज़ होवे जिसनों असीं किसी भी चीज़ ते रख दईए तो उसका कितना हिस्सा कवर करती है, कितना हिस्सा लेंदी है। जिस तरह त्रिभुज ने बोर्ड का ये हिस्सा लिया है तो इसका खेत्रफल है, ठीक है ना। जेकर कोई त्रिभुज बन रही है तो उसका खेत्रफल तो होएगा ही, इसलिए वो नैगेटिव च नहीं होएगा। नैगेटिव का मतलब तो ये होगा कि उसका खेत्रफल ही नहीं है, ठीक है। इत्थे की लिखना है असीं खेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए त्रिभुज जो सी साडे कोल AMC दा खेत्रफल बराबर होएगा 3 वर्ग इकाइयां। सो इसका खेत्रफल साडे कोल कितना हो गया 3 वर्ग इकाइयां। जो नैगेटिव चेंज के कर देना सी पॉजिटिव दे विच, बिकॉज ऑफ नैगेटिव दे विच साडे कोल खेत्रफल तो हुंदा ही नहीं, जेकर नहीं है तो मतलब त्रिभुज नहीं है नहीं, जब कि साडे कोल त्रिभुज तो क्लीयर बन रही है कि AMC त्रिभुज बन रही है, इसलिए इसका खेत्रफल तो होगा ही। इसलिए नैगेटिव रिजेक्ट करके असीं की कहते हैं कि पॉजिटिव दे विच 3 है। सो इसलिए दोवें आंसर जिहड़े साडे कोल 3 बराबर 3 आ जाते हैं। इसलिए साडे कोल जो कंडीशन सी जो असीं सिद्ध करना सी वो साडे कोल सिद्ध हो जाता है, सिद्ध किया किनू एक समीकरण जो साडी को, ठीक है। जो साडे को ये सी कि दोवां दा खेत्रफल की है बराबर, इसलिए असीं लिखते हाँ कि मध्यिका त्रिभुज नूं 2 बराबर खेत्रफल फलां वाले त्रिभुजां विच वंडदी है। सो ये सी साडा जिहड़ा क्वेश्चन है 7.3 का 5th क्वेश्चन, जो साडा इसका लास्ट क्वेश्चन सीगा। सो इस दे नाल साडी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होंदी है ते नाल ही साडा चैप्टर भी जिहड़ा वो कंप्लीट हुंदा है। सो उम्मीद करदा कि क्वेश्चन है तुहानूं क्लीयर हो गया होवेगा। सो दूसरे बच्चों तक असीं शेयर करना है, वीडियो नूं लाइक जरूर करना है जेकर वधिया लगा है। जेकर कोई कमी लगी है तो कमेंट करके जरूर दसो। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट क्वेश्चन दे नाल दी नाल की करना है, सबसक्राइब करना है चैनल नूं ते नाल एक बैल आइकन है वो जरूर दबाउणा है, जिस नाल तुहानूं नवीं वीडियोज़ जिहड़ियां प्राप्त हुंदियां रहणगीਆਂ। थैंक यू।